کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر۔ مرغی کا گوشت 15 روپے مہنگا ہو گیا، قیمت 519 روپے فی کلو ہو گئی۔ انڈوں کی فی درجن قیمت 259 روپے مقرر۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ موجود ہے عبدالقادر۔ جی عبدالقادر، کیا تفصیلات ہیں قیمتوں کی؟ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا اور غیر معمولی طور پر برائلر 15 روپے فی کلو مزید مہنگا کیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو مارکیٹ ذرائع ہیں اس کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو فارمرز ہیں ان کی جانب سے مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور برائلر کی قیمتیں جو ہیں 15 روپے اضافے کے بعد 519 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہیں۔ اس طرح زندہ برائلر کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے تک بڑھائی گئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 338 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 346 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کا موقف یہ ہے کہ پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ سے اور خام مال کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ مارکیٹ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں اضافہ مصنوعی قلت پیدا کر کے جا رہا ہے، کیونکہ برائلر کی قیمتیں دو دن تک جو ہے وہ کم کی گئی تھی، لیکن آج اچانک جو ہے وہ سپلائی متاثر کر کے قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دی گئی ہیں، کیونکہ آج ویکینڈ ہے اور شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری جو ہے عمومی طور پر زیادہ کی جاتی ہے ویکینڈ پہ، تو اس لیے قیمتیں بڑھا کر جو ہے برائلر مہنگا کیا گیا۔ تاہم دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ موسم میں تبدیلی کے باعث جو ہے انڈوں کی قیمتیں جو ہیں اس میں جو ہے کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ 259 روپے فی درجن انڈوں کی قیمت جو ہے برقرار رکھی گئی اور انڈوں کی پیٹی 7,650 کی کر دی گئی۔ مارکیٹ میں فی انڈا 22 سے 23 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخ نامے جاری کیے جاتے ہیں، جس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہانہ بنا کر قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ جی اچھا عبدالقادر، یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ انتظامیہ کے ہاتھ سے باہر چلی گئی یہ بات، تو یہ کیسے اس کا حل نکالا جائے گا، کیسے قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے گا؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو مارکیٹ جو ہے ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ جو برائلر فارمر یا پولٹری فارمر جو ہے ان کی جانب سے سپلائی کی ڈلیوری کے لیے جو ہے وہ جو سپلائر ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، لیکن جو ہے فارم سے جو مال ہے یا جو برائلر کی جو ترسیل ہے وہ ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن یا جو پولٹری فارمر یا جو مالکان ہیں ان کی جانب پہ جو ہے وہ کوئی قسم کے رابطے نہیں کیے جاتے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تنبیہ نہیں کی جاتی کہ برائلر کی سپلائی جو ہے رمضان المبارک میں بہتر بنائی جائے تاکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ کم سے کم رہے اور قیمتیں جو ہیں وہ ایک معقول سطح پر برقرار رہ سکیں۔ برائلر کی قیمتیں رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں جو ہے مسلسل کمی کا شکار تھی، اور جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو شہری ان کی جانب سے مہنگا برائلر جو ہے اس کی خریداری کم کی گئی تھی، لیکن جو برائلر مافیا ان کی جانب سے دوسرے اشرے کے پہلے روز ہی مصنوعی قلت پیدا کر کے غیر معمولی طور پر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اب تک تقریباً 100 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ قیمتیں فی کلو تک بڑھائی جا چکی ہیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ سرکاری نرخ نامے جاری کرنے تک اپنی ذمہ داریاں محدود کر چکی ہے، جبکہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تو پھر عبدالقادر، یہ آنے والے دنوں میں تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے عوام نے پھلوں کا بائیکاٹ شروع کیا پھر یہ چکن کا بھی کر دے گی؟ جی بالکل، پہلے بھی جو قیمتیں کم ہوئی تھیں وہ عوام کی جانب سے برائلر کی خریداری کم کرنے کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ برائلر فارمر کی جانب سے کم کی گئی تھی اور انہیں معقول سطح پر لے کے لایا گیا تھا۔ 450 روپے فی کلو کے ارد گرد جو ہے وہ قیمتیں جو ہے پہنچا دی گئی تھی، جو کہ پہلے 650 روپے فی کلو تھی، تقریباً 125 اور 150 کے قریب جو ہے روپے فی کلو تک قیمتیں کم ہوئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر جو ہے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اس حوالے سے جو مارکیٹ جو ہے ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوسرے اشرے میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اسی طرح تیسرا اشرہ یہ ہے رمضان۔ بہت شکریہ عبدالقادر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر درج مقدمات کا معاملہ، اسد عمر کے بعد مزید 3 رہنماؤں نے جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تینوں رہنماؤں نے پولیس پر پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔
PTI रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश का मामला। PTI के 3 रहनुमा कला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर में JIT के रूबरू पेश हुए। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूदुर रशीद ने JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। JIT की टीम ने जमान पार्क में पुलिस पर हमले से मुतालिक सवालात किए। तीनों रहनुमाओं ने पुलिस पर पथराव और तोड़ फोड़ के वाक़ये से लाताल्लुकी का इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान JIT के सामने पेश न हुए। असद उमर इससे पहले ही JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। JIT 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ये मुकदमा थाना रेस कोर्स, शादमान और सिविल लाइंस में दर्ज है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब और KPK में इंशाअल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे। हुक्मरान हर वो हरबा आजमा रहे हैं जिससे वो इलेक्शन से भाग सकें। इलेक्शन कमीशन के अदालती फैसला मानने के बाद हुकूमत की मैं ना मानूं की रिट कोई अहमियत नहीं रखती। चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक अहमद गनी की मुलाकात। राव अब्दुल रहमान, साबिक सूबाई वजीर बाउ रिजवान और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत। सियासी सूरत हाल और KP पंजाब के इंतखाबात बारे बातचीत। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि KP असम्बली के इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। नाअहल शहबाज शरीफ हुकूमत मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से गैर आईनी करारदादें मंजूर करवाना तौहीन अदालत है। एक वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। फैसला आने के बाद कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली नहीं कर सकता। सदर तहरीक इंसाफ का कहना था कि हुकूमत गैर आईनी इक़दामात उठाकर पार्लियामेंट और इदारों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को अदलिया के खिलाफ हुकूमत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन बहाल रहेगा या पाकिस्तान मावराए आइन मुल्क बनने जा रहा है। अक़लियत ने गुज़श्ता रोज़ गैर आइनी बिल पास किया। पूरा मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। नौमानूर की रिपोर्ट है। PTI रहनुमा असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इनकी असम्बली में तकारीर आइन के मुनाफी हैं। अक़लियत ने गैर आइनी बिल पास किया। पूरा मुल्क इलेक्शन की जानिब जाएगा। पहले ये इमरान खान से डरते थे, अब अवाम से भी डरते हैं। उम्मीद है तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगे। पहले ये सिर्फ इमरान खान से डरते थे, अब ये पाकिस्तानी कौम से डरते हैं। इलेक्शन कमीशन का खुशाइंद फैसला है। उन्होंने दो टोक बात की है कि मनवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल होगा और हमें यकीन है कि तमाम बाकी इदारे भी जो हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल करेंगे। असद उमर ने मजीद कहा कि हम 3 साल 8 माह हुकूमत में रहे। हमारे दौर में मुल्क की तरक्की में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क में महंगाई की शरह 12% थी। इमरान खान जिस वक्त हुकूमत छोड़ के गया तो मुल्क के अंदर महंगाई की शरह जो है वो 12% थी। आज जो है वो महंगाई की शरह जो है ख़ास तौर पे जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की लोगों की अशिया हैं उसकी 45% महंगाई है। 4 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और ये इसी हुकूमत के आदादो शुमार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का ये भी कहना था कि इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का मामला। FIA ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर को तलब कर लिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर को 14 अप्रैल को FIA लाहौर जोनल ऑफिस तलब किया गया है। FIA के मुताबिक PTI ने 2013 के इलेक्शन में ममनुआ फंड्स इस्तेमाल किए। तहरीक इंसाफ नेशनल कैंपेन ऑफिस अकाउंट में 5.25 करोड़ की रकम आई। असद उमर ऑफिस मैनेजर के तौर पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। FIA ने अकाउंट्स में आने वाली रकम की तहकीकात के लिए असद उमर को तलब किया है और पेश होने की हिदायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल का कहना है कि हमको ईद के बाद की तारीख मिली है जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तानी अदालत में पेश नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि केसेस बनाने से महंगाई कम हो सकती है तो मज़ीद केसेस बना दें। 14 मई को सारा गन साफ होगा, जमहूरियत की फतेह होगी। नुमानूर की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा कि इस मुल्क में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। सजा याफ्ता एक मुलजिम इतने सालों से बाहर बैठा है और दूसरा मुलजिम पाकिस्तान के दौरे कर रहा है, खाबे खा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस पर नोटिस लिया जाए। इस मुल्क में 2 कानून है। एक कानून है गरीब के लिए, एक कानून है अमीर के लिए। गरीब के लिए कानून ये है कि हम अदालतों का सामना कर रहे हैं और जो अमीर के लिए कानून ये है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर सालों हाल से बाहर जाके बैठा हुआ है और सजा याफ्ता मुजरम पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है।
पूरी दुनिया में खाबे खा रहा है। मियां असलम इकबाल ने मजीद कहा कि हम इलेक्शन का कहते हैं तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। 14 मई को जमहूरियत की फतह का दिन होगा, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन होगा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कैनाल रोड पर जलाओ घेराव करने और पुलिस पर तशद्दुद का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 27 अप्रैल तक तौसी का हुक्म जारी। अदालत ने आइंदा समाअत पर JIT सरबराह से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। कैनाल रोड पर जलाओ घिराव करने और पुलिस पर तशद्दुद करने का केस। अदालत की एडमिन जज अबर गुल खान ने समाअत की। मुकदमा में मुलविस मुल्जिम मियां असलम इकबाल, मोहम्मद जुबैर खान न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसान न्याजी और मुसर्रर जमशेद चीमा अदालत पेश हुए। JIT सरबराह SP इमरान किश्वर भी कमरा अदालत पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि SSP साहब क्या ये शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। JIT सरबराह SSP इमरान किश्वर ने बताया कि अभी सिर्फ असद उमर शामिल तफ्तीश हुए हैं। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को फौरी शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान ने शामिल तफ्तीश होकर अपना अपना बयान JIT सरबराह को पेश किया, जिन्होंने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। SSP इमरान किश्वर ने कहा, हमने क्राइम सीन विजिट करना है और तफ्तीशी रिपोर्ट मुकम्मल करनी है। अदालत ने मुल्जिमान को हुक्म दिया कि जब ये बुलाएं तो आप आपस में वक्त तय करके फौरी इनके पास जाएं। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के गैर मनकूला जायदादों से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत के गैर मनकूला जायदादों की मालियत पर टैक्स के नफाज के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट है। मनकूला जायदादों पर टैक्स का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने 1200 से ज्यादा दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 50 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस शाहिद जमील खान ने जारी किया। गैर मनकूला जायदाद की मार्केट वैल्यू को आमदनी करार देना कानून साजी के इख्तियार से मुनाफी करार। अदालत ने फैसले में लिखा कि इस कानून के तहत गैर मनकूला जायदाद को आमदनी तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत के गैर मनकूला जायदादों की मालियत पर टैक्स के नफाज के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत ने जाती घर, ऑफिस और ज़राई जमीन के अलावा 2.5 करोड़ से जायद की जायदाद पर 7E के तहत टैक्स लगाया था। दरख्वास्तें उस्मान गिल समेत दीगर ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मोहसिन विर्क एडवोकेट, मुकद्दिम मंशा सुखेरा और FBR की तरफ से खालिद इसहाक एडवोकेट पेश हुए थे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि शौकत खानम हस्पताल की सालाना फंड रेजिंग तकरीब मुखय्यर हजरात की जानिब से 14 करोड़ रुपए की खतीर रकम जमा हुई। तफसीलात अवैस महमूद की इस रिपोर्ट में है। शौकत खानम हस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर इमदाद की। फ्लैटिस होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत आम शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए CEO शौकत खानम हस्पताल डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था, तमाम मरीजों का इलाज बराबरी की सतह पर किया जाता है। साल 2022 में शौकत खानम दुनिया का दूसरा बड़ा कैंसर अस्पताल था, जिसको आलमी सतह पर सराहा गया। सिस्टम सारा 2022 में दुनिया भर में दूसरा अस्पताल था जिसको ये एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन मिली। डॉक्टर फैसल सुल्तान का मजीद कहना था कि शौकत खानम हस्पताल में गरीब और नादार 75% लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। हर साल कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 75% लोग जो हैं उनका इलाज फ्री होता है, और ये 75 हम कहते हैं, एक्चुअली ये असल में हर साल तकरीबन 80-85% के करीब होता है। इसका मतलब है सिर्फ 25% लोग कैंसर का इलाज खुद से करवा रहे होते हैं। शौकत खानम हस्पताल इंतजामिया ने बताया कि रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 39 बिलियन रुपए जमा हो चुके हैं। उम्मीद है रवां साल के आखिर तक शौकत खानम हस्पताल कराची भी मुकम्मल हो जाएगा। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। अदरक 750, लहसुन 450, प्याज 110, टमाटर 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। सेब 450 रुपये किलो, केला 400 रुपये फ़ी दर्जन बिकने लगा है। मजीद इस पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर से कोशिश करेंगे राब्ता बहाल करने की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। अदरक 750, लहसुन 450, प्याज 110, टमाटर 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे हैं। सेब 450 रुपये किलो, केला 400 रुपये फ़ी दर्जन बिकने लगा है। आपको आगाह करें कि कीमतों में उतार चढ़ाव दोबारा देखा गया है और महंगाई ने अवाम का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में
4 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، عبدالقادر سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ جی عبدالقادر، 4 مزید سبزیوں کی قیمتیں اب آگے کر دی گئی ہیں؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ 4 جو ہے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ جو مارکیٹ کمیٹی سبز منڈی ہے اس کی جانب سے جو آج کے لیے سرکاری نقصنامے جاری کیے گئے ہیں سبزیوں کے، اس میں جو ہے وہ 4 سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں، جبکہ دیگر سبزیاں جو ہیں وہ بھی سرکاری نقصناموں کے برعکس مہنگے داموں ہی فروخت کی جا رہی ہیں۔ پیاز جو ہے 80 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں پیاز جو ہے 110 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر بھی 80 روپے سرکاری ریٹ اس میں آج کی قیمت ہے، لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے وہ 110 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن جو ہے وہ 350 کے برعکس 450، ادرک 630 کے برعکس 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبز مرچ 95 روپے مقرر کی گئی، لیکن فروخت 120 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ لیموں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیموں دیسی 20 روپے مہنگا کر کے 400 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں دیسی لیموں جو ہے وہ 500 سے 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو لیموں چائنا ہے وہ 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹنڈے فارمی 4 روپے مہنگے کر کے 64 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں یہی ٹنڈے 90 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بیگن 6 روپے اضافے کے بعد 64 روپے، لیکن مارکیٹ میں 90 سے 100 روپے فی کلو تک بیگن کی فروخت کی جا رہی ہے۔ پالک 5 روپے اضافے کے بعد 40 روپے مقرر کیا گیا، لیکن 40 کے برعکس جو پالک مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے وہ 50 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 200 روپے مقرر کی گئی، لیکن فروخت 250 سے 280 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 74 کے برعکس 100 روپے، اروی 150 کے برعکس 180 روپے اور مٹر 183 کے برعکس 200 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پھل بھی جو ہے وہ ایک عام شہری کی قوت خرید سے باہر ہے۔ سیب کالا کولو مارکیٹ میں 450 سے 480 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 400 روپے درجن، جبکہ درجہ دوم کا کیلا جو ہے 250 روپے درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کھجور ایرانی جو ہے وہ 580 سے 600 روپے فی کلو تک، خربوزہ 140 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ انار بنانا 890 سے 900 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ امرود جو ہے وہ 250 روپے فی کلو تک جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پھل جو ہے وہ تو ایک عام آدمی کی قوت خرید میں پہلے ہی جو ہے وہ باہر تھے، لیکن اب رمضان المبارک میں پھلوں کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جو انتظامیہ اس کی جانب سے قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے یا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی واضح اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر۔ آگے بڑھو اور آپ کو بتائیں، رمضان المبارک میں ہوش ربا مہنگائی کو سرکاری اعداد و شمار میں بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے 44.5% مہنگائی ظاہر کر دی۔ برائلر گوشت اور چینی سب سے زیادہ مہنگی ہوئی۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہوش ربا مہنگائی کو سرکاری اعداد و شمار میں بھی تسلیم کر لیا گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.92% کا اضافہ ہوا، جس سے سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار بنیاد پر مہنگائی کی مجموعی شرح 44.49% تک پہنچ گئی۔ 27 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، صرف 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے میں چینی کی فی کلو قیمت میں 14 روپے 64 پیسے اضافہ ہوا۔ ہفتہ بھر میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 81 روپے 66 پیسے مہنگا ہوا۔ رپورٹ کے مطابق زندہ برائلر مرغی کی فی کلو قیمت میں 51 روپے 83 پیسے اضافہ ہوا۔ مٹن 2 روپے 73 پیسے اور بیف 5 روپے 15 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ آلو کی فی کلو قیمت 2 روپے 99 پیسے بڑھی۔ حالیہ ہفتے کے دوران کیلے فی درجن 11 روپے 52 پیسے مہنگے ہوئے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق دال، چاول، دودھ، دہی اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ رمضان المبارک میں اشیاء خورنوش کے نرخوں میں استحکام بڑا مسئلہ بن گیا۔ سرکاری نرخوں کے برعکس انتہائی زائد نرخوں پر فروخت نے پھلوں کو شجر ممنوعہ بنا دیا۔ صورتحال میں بہتری کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ رمضان کے دوران دالیں، سبزیاں، پھل، غرض کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی سرکاری نرخوں پر دستیابی ممکن بنائی جا سکی ہو۔ پھل تو جیسے عام صارف کے لیے شجر ممنوعہ بن چکے ہیں۔ سیب کالا کولو سرکاری قیمت 320 روپے کی بجائے 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 215 کی بجائے 400 روپے فی درجن تک مل رہا ہے۔ کھجور ایرانی کی سرکاری قیمت 450 ہے، لیکن یہ 560 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ یہی صورتحال دیگر پھلوں کی بابت بھی دکھائی دیتی ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، غریب آدمی پیس کے رہ چکا ہے، سفید پوش طبقہ، جسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے پاس جاؤں۔ ہر آدمی کا اپنا ریٹ ہے، کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کہ کون سی چیز کتنے میں بک رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، مختلف ریٹ ہے۔ تو سرکاری ریٹ پہ تو کوئی چیزیں ملتی، کچھ چیزیں ہیں جو مل جاتی ہیں،
बाकी ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं मिल रही। ऐसी ही सूरत हाल सब्जियों के हवाले से भी देखने में आ रही हैं। प्याज 90 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो, लहसुन चाइना 350 के बजाय 470, तो टमाटर सरकारी कीमत 100 रुपए की बजाय 130 रुपए फी किलो तक मिल रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली 24 और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ऐड किए हैं अपने सिस्टम में। लाहौर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ज़िला है और ऑब्वियसली उसकी क्रिटिकल मार्केट्स जिस तरह हमारी 25 से ज़ायद क्रिटिकल मार्केट्स हैं इन प्लेस, तो उसको सर्वेलेंस के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए और वहाँ वर्किंग के लिए हमें मज़ीद लोग भी दरकार थे। साथ ही साथ हमारी जो मार्केट कमेटीज़ हैं वो एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं। सुबह उस ऑक्शन को हम लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। हकीकत ये भी है कि अब मुनाफाखोरी का रुझान इतना बढ़ चुका है कि इस पर काबू पाना बज़ाहिर आसान नहीं रहा। न जाने हमने भी कौन सा तर्ज अमल इख्तियार कर लिया है कि जो हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पर उकसाता रहता है और नतीजतन हमें कानून का कोई पास रहा, ना ही इखलाकियात से कोई रिश्ता बाकी बचा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। लाहौर पुलिस के 14 DSPs के तकर्रो तबादले। पंजाब भर में तरक्की पाने वाले 51 DSPs को नए ओहदों पर तैनात कर दिया गया। लाहौर पुलिस के 14 DSPs के तकर्रो तबादले कर दिए गए। DSP जावेद सिद्दीक गुलशन रावी तैनात, DSP हसन उज़ैर को बरकी लगा दिया गया। शफकत नदीम DSP गार्डन टाउन, अली अब्बास DSP मुगलपुरा तैनात। लाहौर पुलिस के 14 DSPs के तकर्रो तबादले। DSP जावेद सदीक गुलशन रावी तैनात, DSP हसन अजीज को बरकी लगा दिया गया। शफकत नदीम DSP गार्डन टाउन, अली अब्बास DSP मुगलपुरा तैनात। मकसूद अली को DSP शाहदरा, मोहम्मद एजाज को DSP इचरा लगा दिया गया। मोहम्मद अफजल DSP नवाकोट, मोहम्मद नुमान DSP टिब्बी, जबकि मलिक रियाज DSP मनावा तैनात। शकील अहमद को DSP हेडक्वार्टर्स स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया। रजा हुसैन DSP स्पेशल ब्रांच लाहौर लगा दिए गए। करामतुल्लाह खान को DSP इंटेलिजेंस CTD लाहौर तैनात किया गया है। आसिफ रहमान DSP CIA झंग, नासिर अब्बास DSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात। जुबैर अख्तर DSP ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला, अब्दुल गफ्फार DSP हेडक्वार्टर्स स्पेशल ब्रांच गुजरांवाला तैनात। एजाज अहमद DSP CIA गुजरांवाला तैनात किए गए हैं। मोहम्मद नईम DSP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद, ताहिर मुश्ताक DSP लाइसेंसिंग हेडक्वार्टर्स मुल्तान तैनात किए गए हैं। तमाम अफसरान के तकर्रो तबादलों और तैनातियों के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि PHA ने बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। बाग जना में 40 नायाब दरख्त लगा दिए गए हैं। बहार शजरकारी मुहिम के तहत 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। DG PHA कहते हैं तालीमी इदारों में भी शजरकारी मुहिम से मुतालिक लेक्चर्स दिए जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखते हैं। शजरकारी हम सब की जिम्मेदारी। बहार शजरकारी मुहिम के तहत स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने बाग़े जना पार्क में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम के तहत पार्क में नायाब और फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि बहार शजरकारी मुहिम के तहत शहर भर में 6 लाख दरख्त और पौधे लगाएंगे। PHA आइंदा चंद रोज तक शहरियों में मुफ्त पौधों की तकसीम का अमल भी शुरू कर रहा है। बहार शजरकारी मुहिम में हदफ पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। एक ट्री प्लांटेशन जो हम खुद अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ में करते हैं तो उनका सर्वाइवल रेट काफ़ी बेहतर है। एक जो हम जनरली आप पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि वो पौधे प्रोवाइड करते हैं, इस साल हमारा जो टारगेट है वो 6 लाख के करीब है। तो इंशाल्लाह हम ये 6 लाख का टारगेट जो है कि वो मीट करेंगे। हमारा जो है कि वो काम शुरू हो चुका है। बाकी जो पब्लिक को हमने प्लांट्स प्रोवाइड करने हैं वो भी मंडे से जो है मुख्तलिफ चौक से प्रोवाइड करना शुरू कर दें। DG PHA ने मजीद बताया कि शजरकारी मुहिम में लगने वाले पौधों से मुतालिक मैकेनिज्म बना रहे हैं। हर डायरेक्टर की जानिब से जितने पौधे लगाए जाएंगे उनकी नशोनुमा से मुतालिक बाज पुर्स भी की जाएगी। कैमरामैन उमर फजल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान कहते हैं आलमी इदारा सेहत के ताउन से पंजाब में बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट है। रवां साल सेहत सबके लिए के तहत सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस में इस हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर सईद इलाही व दीगर शरीक हुए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि बीमारियों के हवाले से आगाही फैलाना बहुत जरूरी है। आलमी इदारा सेहत के ताउन से पंजाब में बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। GDP का 6% सेहत पर खर्च करना है। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात का इशारा देता है या इस बात को इंडिकेटिव उनकी एक गाइडलाइंस हैं जो ये कहती हैं कि हर मुल्क को तकरीबन 6% अपनी GDP का कम अज़ कम हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना चाहिए।
सेमिनार से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन का कहना था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में गरीब अफराद को माली तहफ़्फ़ुज़ और मयारी तिब्बी खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आपकी हेल्थ कंप्लीट नहीं है जब तक आप जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, माशरती तौर पे मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार नहीं हैं और आप मुकम्मल तौर पे आपको सेहतमंद डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एक चीज़ हमें 2020 में पता चल गई कि पूरी दुनिया में हेल्थ में ना इतनी रिसर्च की और ना इतना ख़र्चा किया, क्योंकि कोविड में किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि वो डिज़ीज़ क्या थी और उसने क्या की। तिबी माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब अफराद को सेहत के मसाइल का सामना है। ज़्यादातर गरीब और मुतवसत तबके के लोग शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ताजिर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में समोग के तदारुक से मुतालिक केस जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत माहौलियाती कमीशन के मेंबर सैयद कमाल हैदर ने बताया कि अदालती हुक्म के बावजूद लाहौर में दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है, जिसके बायस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। अदालत ने दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और बावर करवाया कि दरख्तों की कटाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरान समाअत अदालत से इस्तदा की गई कि ईद की आमद है, लिहाजा मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए। अदालत ने ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। अदालत को बताया गया कि लाहौर में साफ पानी की ज़ेरे ज़मीन सतह मजीद गिर रही है, जिससे आने वाले वक्त में साफ पानी की किल्लत पैदा होने का खदशा है। अदालत ने वासा को लाहौर के अंडरग्राउंड पानी की सतह दोबारा चेक करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्तों पर मजीद समाअत 14 अप्रैल को होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डेंगू सर्वेलेंस टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। DC लाहौर राफे हैदर ने शालीमार और कैंट के इलाकों में डेंगू टीमों का जायज़ा लिया। DC लाहौर राफे हैदर का कहना है, रवां साल 684 इंडोर और 36 आउटडोर मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। 681 अफराद को वार्निंग नोटिस, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जा चुके हैं। महकमा मौसमियात के अलर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए डेंगू सर्वेलेंस की तादाद बढ़ाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।